Hey guys, welcome back to the another video on Commerce Arena. Statistics and economics. Statistics and economics. In the previous section, you were told about certain special studies that concern the basic problem facing the country. हमने पहले क्या पढ़ा है in previous section? Previous section में हमने ये पढ़ा कि बहुत सारी special studies कि basic problem जो हमारी country face कर रही है वो क्या क्या हैं. So we have studied about that. These studies, These studies require that we know more about economic facts in terms of numbers. Such economic facts are also known as data. इन studies ने ये बताया हमें कि हमें ज़्यादा economic facts बताए हैं numbers की form में. The economic facts in terms of numbers are also known as data. This is the definition of data. Economic facts in terms of numbers are also known as data. Fine. The purpose of collecting data about these economic problems is to understand and explain these problems in terms of the various causes behind them. Means जो purpose है हमारा इस data को collect करने के पीछे वो क्या है, अंडरस्टैंड करना और एक्सप्लेन करना इन प्रॉब्लम्स को बहुत सारे कॉजेज के साथ. इन अदर वर्ड्स वी ट्राई टू एनालाइज देम. हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस डेटा को कलेक्ट करके. अगर हमने पॉवर्टी कितनी है मीन्स कितने पुअर लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, तो वो लोगों का नंबर अगर हमने पता लगा लिया द न्यूमेरिक डेटा तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when we analyze the hardships of poverty, we try to explain it the same example that I have given you, right? Let's come on next paragraph. But what purpose does the analysis of poverty serve unless we are able to find ways to mitigate it? We may therefore also try to find those measures that help solve an economic problem. अगर हमने poverty के नंबर जान भी लिए, एनालिसिस कर भी लिया, तो हमें उसको वो वेज ढूंढनी होगी जिससे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, मीन उसको कम कर सकते हैं, राइट? सो इन इकोनॉमिक सच मेजर्स आर नोन एज पॉवर्टी. वेज टू मिटिगेट द प्रॉब्लम आर नोन एज पॉलिसीज. ओके, पॉलिसीज क्या हैं? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिसीज. द वेज टू मिटिगेट और सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम is known as policies. So do you realize then that no analysis of a problem would be possible without the availability of data on various factors underlying an economic problem? अब आपको पता लगा, जो हमने अभी तक स्टडी किया है उससे आपको पता लगा होगा कि जो कोई भी प्रॉब्लम की एनालिसिस वेस्ट होती है या पॉसिबल ही नहीं होती विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. अगर हमारे पास डेटा नहीं है प्रॉपर तो वी कैन नॉट analyze any problem. So and that in such a situation no policies can be formulated to solve it. उस situation में कोई भी policies भी नहीं बन सकती उसको solve करने के लिए. फाइन, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जो रिलेशनशिप है वो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है. थोड़ा थोड़ा मीन्स टू लार्ज एक्सटेंट, राइट? देन what is statistics? At this stage you are probably ready to know more about statistics. अब आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही होगी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने के लिए, राइट? सो यू माइट वेरी वेल वांट टू नो व्हाट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट. व्हाट आर इट्स स्पेसिफिक यूजेस इन इकोनॉमिक्स? या दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर माइंड, राइट? डज इट हैव एनी अदर मीनिंग? सो come on next paragraph. In our daily language, the word statistics is used in two distinct सेंसेस. दो सेंसेस में आपको ये वर्ड यूज़ करते होंगे, सिंगुलर या प्लूरल. द प्लूरल सेंस, my pen now. So in the plural sense, statistics means numerical facts. Write down the definition of statistics highlighted by red pen. Statistics means numerical facts systematically collected as described by Oxford Dictionary. सिंपल मीनिंग जो है प्लूरल सेंस में
अगर हम प्लूरल सेंस में लेते हैं तो ये इसका स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है. ओके, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट. By data or statistics, we mean both quantitative and qualitative facts that are used in economics. Statistics से हमारा data या statistics से हमारा मतलब है quantitative and qualitative both. Quantitative and qualitative both. Statistics से हमारा मतलब है both. Fine. So for example you can study yourself. Yeah, in addition to the quantitative data, economics also uses qualitative data. अगर economics quantitative data use करती है तो वो qualitative data भी use करती है, also uses qualitative data. The chief characteristic of such information is that they describe attributes of single person or a group of person that is important to record as accurately as possible, even though they cannot be measured in quantitative terms. मीन्स जो चीफ करेक्टरिस्टिक होती है ऐसी इंफॉर्मेशन की वो ये होती है कि वो जो होती मतलब जो ये इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्राइब करती है एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज़ एक सिंगल पर्सन की, है ना, सिंगल पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन्स की जो कि एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है, चाहे वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर की जाती हो चाहे ना की जाती हो. राइट, नाउ यू कैन कम to this paragraph. You will study you will study in the subsequent chapters that statistics involves collection and organization of data. आपने पढ़ा होगा कि जो statistics होती है, statistics involve collection and organization of data. तो जो नेक्स्ट स्टेप स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का. तो जो नेक्स्ट स्टेप है डेटा को प्रेजेंट करने का, वह या तो हम टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, तो होती ना ऐसे करके टेबल, दिस इज द टेबुलर फॉर्म, राइट, दिस इज द टेबुलर फॉर्म, दिस इज द टेबल. इन डायग्रामेटिक फॉर्म, डायग्राम होता है लाइक वी कैन ड्रॉ पाई चार्ट. आई होप यू हैव सीन द पाई चार्ट. नो, वेट, you have seen this bar graph, right, in earlier in smaller classes you have studied about this. So diagrammatic and graphic form, graphic means pictures की help से भी हम कर सकते हैं. तो the data that is the data that then is summarized by calculating various numericals. जो डेटा होता है हम उसको फिर समराइज करते हैं. द डेटा देन समराइज बाय कैलकुलेटिंग वेरियस न्यूमेरिकल इंडाइसेस सच एज मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा. ये सब एक वो होती हैं न्यूमेरिकल इंडाइसेस होती हैं, मीन्स बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, मीन्स बहुत सारे मेजर्स होते हैं जो कि हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, समराइज करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा, दैट रिप्रेजेंट द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कलेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है. बाय नाउ यू नो दैट स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर एन इकोनॉमिस्ट दैट है वो क्या कर सकती है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट स्टैटिस्टिक्स क्या है. स्टैटिस्टिक्स एक वी कैन से अनुमान, मीन्स एक अंदाज़ा है कि हम एप्रोप्रिएशन, ओके, मीन्स एक एप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे सामने आ जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स वी कैन फाइंड द क्वांटिटेटिव डेटा अबाउट वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, लाइक वी से दैट 130 करोड़ is the population of India, but it is only an estimation, not the fact, not the proper data, as every day many people dies and many people born, so we cannot find the exact number, right. So what statistics does, let's read. See,
By now, you know that statistics is an indispensable tool for an economist that helps him to understand an economic problem. Means statistics is an indispensable tool for an economist that helps him to understand an economic problem. Statistics वो टूल है एक इकोनॉमिस्ट के लिए. इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं? जो स्टडी करते हैं इकोनॉमी की, राइट. इकोनॉमिक्स के बारे में वो अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं, मीन्स स्टडी करते हैं इकोनॉमी को. तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो टूल है जो इकोनॉमिस्ट को हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने में. या सो यूजिंग its various methods, there are various methods of using statistics. Effort is made to find the causes behind it with the help of the qualitative and the quantitative facts of the economic problem. उसके बहुत सारे methods की वजह से या उनको यूज़ करके जो एफ़र्ट होते हैं वो किए जाते हैं. मीन्स बहुत सारे एफ़र्ट्स किए जाते हैं कॉजेज़ ढूंढने में. जो हमारे पास किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा होता है तो हम उसके कॉजेज़ भी ढूंढ सकते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स, द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू डू सो. Fine. Once the causes of the problem are identified, it is easier to formulate certain policies to tackle it. जब हमें उसको causes पता होते हैं तो वो प्रॉब्लम के लिए पॉलिसीज़ बनाना बहुत ईजी हो जाता है. ओके. फाइन. सो बट देयर इज़ मोर टू स्टैटिस्टिक्स. लेकिन स्टैटिस्टिक्स इतनी ही नहीं है. स्टैटिस्टिक्स इज़ मोर देन दैट. इट इनेबल्स एन इकोनॉमिस्ट the economist to present economic facts in the precise and definite form that helps in proper comprehension of. See, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक इकोनॉमिस्ट को इनेबल करती है. इकोनॉमिस्ट को इतना सक्षम बनाती है कि वो अपने इकोनॉमिक फैक्ट्स जो उसने फैक्ट्स फाइंड किए हैं वो प्रिसाइज और डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट कर सके. ओके. व्हेन इकोनॉमिक फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैटिस्टिकल टर्म दे बिकम एग्जैक्ट. जब इकोनॉमिकल फैक्ट्स जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाता है. ओके. दे बिकम एग्जैक्ट. एग्जैक्ट फैक्ट्स आर मोर कन्विंसिंग देन वेग स्टेटमेंट. जो एग्जैक्ट फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट्स कहते हैं ना कि पूरी बात जानने के पहले हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, राइट. सो यही बात है कि अगर हमें एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर सकते. सो जो एग्जैक्ट फैक्ट्स होते हैं वो मोर कन्विंसिंग होते हैं देन वेग स्टेटमेंट्स. ओके. एग्जैक्ट फैक्ट आर मोर कन्विंसिंग देन वेग स्टेटमेंट. 1 minute more. Sorry for the inconvenience. For instance, saying that with precise figures 310 people died in the recent earthquake in Kashmir. तो फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि एक प्रिसाइज फिगर दे दी है कि 310 लोग जो थे, 310 पीपल जो थे वो मर गए थे जो अर्थक्वेक आया था कश्मीर में. इज़ मोर फैक्चुअल. वो ज़्यादा फैक्चुअल लगेगा, राइट. क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है. ओके. दस स्टैटिस्टिकल डेटा, ये ही एक स्टैटिस्टिकल डेटा है. वेयर एज सेइंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इट इज़ नॉट. अगर हमने बोल दिया कि 310 लोग मरे हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन दैट वेयर, व्हेन, हाउ, है ना, ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठेंगे. सो दिस इज़ इन स्टैटिस्टिकल डेटा बिकॉज हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है. मीन्स कश्मीर में था, अर्थक्वेक था, उसमें 310 लोग मरे. बट अगर मैं ये बोल दूँ कि ओनली 300
हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई मीन्स 100 से ज़्यादा लोग मर गए. दिस इज़ नॉट प्रॉपर डेटा. सो लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Statistics also helps in condensing the mass of data, condensing the mass of data into few numerical measures. Statistics जो होती हैं वो हमारी numerical measures जो होते हैं, numerical जो हमारा data होता है, data is very large, it is not so small that we can represent it very easily, no. So हम few numerical measures calculate कर लेते हैं जिससे कि हमें ईजी होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना. कंडेंस कर लेते हैं हम डेटा को. मास ऑफ डेटा मीन्स इन द बल्क, राइट. सो उसको हम शॉर्ट कर लेते हैं. वी कैन से ब्रीफ. दीज न्यूमेरिकल मेजर्स हेल्प समराइज डेटा. ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं लाइक मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टेप डिविएशन एक्सेट्रा. सो ये हमें डेटा को समराइज करने में हेल्प करते हैं. मीन्स जो हमारी डेटा बहुत सारा होता है, लार्ज डेटा को हम स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर द इनकम्स ऑफ ऑल द पीपल इन अ डेटा इफ़ द नंबर ऑफ पीपल इज़ लार्ज. ये इम्पॉसिबल होता है अगर हमारे पास हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड देयर आर 1000 ऑफ पीपल. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर द इनकम्स ऑफ ऑल द पीपल, all the 1000 people. So if the number, yet one can remember easily a summary figure like the average income that is obtained statistically. But अगर हम उनका सबका average निकाल लें तो we can remember that very easily. So in this way statistics summarizes. Statistics, wait a minute. Statistics summarize. Sorry for the inconvenience. Statistics summarizes and presents a meaningful Statistics summarizes and presents a meaningful overall information अबाउट अ मास ऑफ डेटा. मीन्स जो इतना सारा डेटा हमारे पास है उसमें से जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वी कैन समराइज एंड प्रेजेंट दैट. फाइन. स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो क्वाइट ऑफन स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स. बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं तो उनके बीच में भी हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वी हैव रेड टिल नाउ. सो an economist may be interested in finding out what happens to the demand for a commodity when its price increases or decreases. एक इकोनॉमिस्ट इंटरेस्टेड होता है इन चीज़ों में कि जो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड को क्या हुआ है जब प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा. और वुड द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इट्स ओन प्राइस. कि जो कमोडिटी की सप्लाई है वो इफेक्ट करेगी अगर उसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा. मीन्स चेंज होगा प्राइस. ओके, दीज आर 2 questions. थर्ड वन, और वुड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन द एवरेज इनकम इंक्रीज. जब एवरेज इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होगा वो बढ़ेगा. दिस इज द थर्ड वन. Wait, first here, second here, third one here, and fourth one. Now we are on fourth. और what happens to the general price level when the government expenditure increases. अगर government expenditure बढ़ेगा तो क्या होगा. The general price level को कैसे अफेक्ट करेगा. Such questions can only be answered. Such questions can only be answered if any relationship exists between the various economic factors that have been stated above. हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स का रिलेशनशिप बताती है स्टैटिस्टिक्स. तो ये जो क्वेश्चंस हमने अभी 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, these 4 questions we
हैव रेड, है ना। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तभी आंसर हो सकते हैं जब हमें रिलेशनशिप पता हो या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच। सो वेदर सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट कैन बी इजीली वेरीफाइड बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू देयर डेटा। हम उनकी रिलेशनशिप बहुत इजीली जान सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई रिलेशन है या नहीं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वी विल रीड देम ऑल्सो इन नेक्स्ट चैप्टर्स। सो इन सम केसेस the economist might assume certain relationship between them and like to test whether the assumption he made about the relationship is valid or not. कुछ केसेस में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एज्यूम करते हैं कुछ रिलेशनशिप, मीन्स खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, वो सोच लेते हैं टू टेस्ट वेदर द assumption he made about the relationship is valid or not. मीन्स जो वो रिलेशनशिप सोच रहे हैं इज़ वैलिड और नॉट. The economist can do this only by using statistical techniques. Means economist ये कर सकता है केवल और केवल statistical techniques को use करके, by using the statistical methods. If you like my efforts, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel for getting more updates about the other videos.